students, today I'm going to explain you chapter 10 of class 4. The name of the chapter is Forest and Wildlife. In this chapter we are going to study about forest and wildlife. Students, you need to understand that as soil and water are important, forest and wildlife are equally important for us. Okay, a very major part of forest has covered of our India, of our world. 1/3 part of Earth's total area is covered by forest. And what are kinds of forests are present on this surface? Let's talk about that. So first topic, we have evergreen forest, which is also known as tropical rainforest. Clear? This kind of forest are very hot and wet areas because they are found in exactly the equator portion. For example, what I mean to say, for example, this is the earth, this is an equator. You already know that this is a imaginary line which bisects the spherical earth surface into equal parts. So when earth rays come, it directly reaches to the equator imaginary line area region, and in that region this kind of forest, evergreen forest, lies. Okay, what next? What they are found on the rainy shapes of Western Ghats, the hills of Northeast India, and in the Andaman and Nicobar Islands. These are the regions where these forests are found, and I have already mentioned that they are found near the equator, and that's why they are very hot and wet. The trees found in evergreen forest do not shed their leaves. Okay, यहाँ पर जो forest मिलते हैं वो अपनी leaves को shed नहीं करते, झड़ती नहीं है. They remain green throughout the year. वो पूरे साल हरे रहते हैं. They don't shed their leaves. Okay. Trees in the forest are generally tall and have broad canopy at the top. यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े छोटे छोटे ट्री होते हैं, उनकी broad canopy होती है top पर. ठीक है. The woods is very hard. उसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा hard होती है, strong होती है. The main evergreen trees are rosewood, mahogany, and ebony. These are the examples of main evergreen trees. These forests have a thick undergrowth of bushes and trees. यहाँ पर मोटी मोटी bushes और trees होती है undergrowth में. ठीक है, यानी कि यहाँ पर bushes और plants additionally grow होने लग जाते हैं. ये था हमारा evergreen forest. ठीक है, ये 3-4 key terms you have to remember in your mind. Next we have deciduous forest. Okay, so deciduous forests are also called monsoon forest. ठीक है, जैसे कि evergreen forest को tropical rain forest बोला जाता था, similarly deciduous forests are also known as monsoon forest. Okay. They are usually found along the foothills of the Himalayan mountains and in western parts of the southern plateaus. ठीक है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो foothills of the Himalayas mountains और southern plateaus के western parts में पाए जाते हैं. In India, they cover more area than the evergreen forest. यानी कि evergreen trees से भी ज़्यादा इंडिया के अंदर हमारे पास deciduous forest यानी कि monsoon forest पाए जाते हैं. The trees found in deciduous forest shed their leaves once a year. यानी कि evergreen forest do not shed their leaves, but deciduous forest shed their leaves once in a year in the dry season. And which season is that? That is the dry season. Teak and sal are the main trees found in these forests. Okay, ये सब कुछ examples हैं जो कि trees in forest की categories में आते हैं. Other trees common here are shisham, sandalwood, mahua, samul, and bamboo. Clear? Next we have coniferous trees. The coniferous trees are found in the Himalayan region. ठीक है, ये Himalayan regions में पाए जाते हैं. कौन से आपकी coniferous forest? Okay, आप देख भी सकते हो कितना सुंदर लग रहा है Himalayan areas में ये trees जो होते हैं. They spread over very large area. ठीक है, बहुत सारे large extended areas में फैले हुए हैं. The trees in this forest grow very long and bear cones and have pointed leaves. ठीक है, यानी कि इनकी इस तरह से pointed leaves होती हैं, as you can see from the image. These trees have soft wood, यानी कि hardwoods नहीं होते जैसे कि हमने previous wood forests देखा ना, ये soft होते हैं. Pine and deodar are main trees of forest. और इसके main trees कौन से हैं? Pine and deodar. Next we have tidal forests. So tidal forests are found in the marshy lands of deltas, यानी कि ये deltas के marshy lands में पाए जाते हैं. In the Ganga Delta region, these tidal forests are called Sundarbans. यानी कि गंगा डेल्टा रीजन में ये जो आपके पास टाइडल फॉरेस्ट होते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें सुंदरबंस बोला जाता है. ठीक है. For example, you can see the Mahanadi Delta and the northeastern coast of Tamil Nadu also have tidal forests. यानी कि tidal forest कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? महानदी डेल्टा और नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु के पास. ठीक है. Mangrove and Sundari are the common trees of tidal forest. Sundarban Delta have been named after Sundari tree which are plenty in the Sundarbans. ठीक है, यानी कि जो वहाँ पर बहुत सारे सुंदरबंस पाए जाते हैं उसी के नाम से सुंदरी ट्री नाम पड़ा है. ठीक है. Next we have thorny forest. Thorny forests are found in Rajasthan. ठीक है, thorny forest हमें राजस्थान में मिलते हैं. Southern plateaus and some parts of पंजाब, यानी कि Southern plateaus में पंजाब की कुछ एरियाज में along with राजस्थान हमें thorny forest मिलते हैं. Water is scanty here. यहाँ पर water की बहुत ज़्यादा
कमी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है यहाँ पर वाटर की। हैंस द ट्रीज विच ग्रो हियर आर सर्वाइव विदाउट वाटर। अब आप खुद ही समझे, जहाँ पर ऑलरेडी वाटर अवेलेबल नहीं है, अगर वहाँ पर कोई ट्रीज ग्रो हो रही है दैट मीन्स उन्हें ज़्यादा वाटर चाहिए ही नहीं। दैट्स वाई यू कैन रिमेंबर दैट थॉर्नी ट्रीज डू नॉट रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर बिकॉज दे फाउंड इन द रीजन्स ऑफ राजस्थान एंड साउथर्न एरियाज। Barbel cactus kaikal are the common trees that grow here. Now we have studied so many forests, हमने बहुत सारे फॉरेस्ट देख लिए हैं। अब देखते हैं इन फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। सो दैट वी आर गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी कि हम फॉरेस्ट को सॉइल और वाटर जितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो इनमें कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए बहुत सारे यूजेस में। पहला यूज़ है हमारे पास फॉरेस्ट मेन सोर्स है फूड का। हमें ये तो सबको पता है कि ट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे प्रोवाइड अस फूड एंड शेल्टर, राइट। ट्रीज टेक अस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी कि आपको पता होगा कि हम लोग को ह्यूमंस को ऑक्सीजन चाहिए होती है और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, ठीक है। यानी कि ह्यूमंस को क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन, और प्लांट्स को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए और हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो प्लांट्स के पास जाती है, और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए बट ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि हम ह्यूमंस को मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से साइकिल चलता है। इसीलिए हमारे पास प्लांट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रीज और प्लांट्स ही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जो हम रिलीज करते हैं, ठीक है। And provide with oxygen, thus they maintain balance of oxygen in the atmosphere। और इसी तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन बैलेंस रहती है। ट्रीज चेक सॉइल इरोजन। ट्रीज सॉइल इरोजन भी चेक करते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं, जो वाटर और एयर के थ्रू जो सॉइल डिपॉजिट हो जाती है उसको बोलते हैं। ओके, दीज प्रोवाइड शेल्टर एंड प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। यानी कि ये क्या प्रोवाइड करती है, शेल्टर और प्लेस प्रोवाइड करती है। ऑब्वियसली वाइल्ड एनिमल्स का घर होता है फॉरेस्ट, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। ट्रीज हेल्प द क्लाउड्स टू रेन, यानी कि ट्रीज क्या करते हैं, हेल्प करते हैं क्लाउड्स के सो दैट दे आर एबल टू रेन। वी आर प्रीशियस वुड मेडिसिन हर्ब्स बैम्बू गम्स रबर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी मेडिसिन का बैम्बू रबर और बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड होती है। ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। वी हैव सीन सो मेनी लॉट ऑफ यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दैम। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम वेज थ्रू विच वी कैन कंजर्व आवर फॉरेस्ट। फर्स्ट वी हैव चिपकू मूवमेंट, यानी कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे मूवमेंट्स लिए चुके हैं ताकि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो चिपकू मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें लोग ना पेड़ से ऐसे चिपक गए थे कि हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे। सो दिस इज अ स्टेप टेकन बाय सिटीजन्स टूवर्ड्स देयर मूवमेंट, टूवर्ड्स देयर अवेयरनेस, टूवर्ड्स देयर काइंडनेस अबाउट ट्रीज, कि हम ट्रीज को कटने नहीं देंगे, ठीक है। सो लेड बाय फेमस इन्वायरमेंटलिज्म सुंदरलाल बहुगुणा इज द बेस्ट एफर्ट टू सेव फॉरेस्ट, यानी कि इनका बेस्ट एफर्ट माना जाता है किसका, सुंदरलाल बहुगुणा का, जिन्होंने ये मूवमेंट में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था कि हम पेड़ को नहीं कटने देंगे। वन महोत्सव, सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट एक्सेट्रा some of the steps taken by the government for planting much and more trees, ठीक है। यानी कि ये भी कुछ steps थे जो कि गवर्नमेंट ने लिए थे so that plants नहीं काटे जाए, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटलिज्म एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि हम बहुत सारे ट्रीज को काट कर उस लैंड पर बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं। ये उससे इकोनॉमी तो बढ़ रही है लेकिन हमारा इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, तो इसलिए एटलीस्ट कम से कम 1/3 जो टोटल एरिया है वहाँ पर फॉरेस्ट होनी चाहिए, वरना हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ज़्यादा खतरे में हो जाएगा। ओके, while India has only about 20% of total land area covered by forest, यानी कि हमारे इंडिया में सिर्फ 20% एरिया, यानी कि 80% एरियाज बिना फॉरेस्ट के हैं। यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं या ट्रीज ग्रो नहीं हो सकते, कोई भी रीज़न हो, बट 80% लैंड बिना फॉरेस्ट के है और 20% लैंड पर ही सिर्फ फॉरेस्ट है, जो कि बिल्कुल भी इनफ नहीं है, यानी कि बहुत कम ट्रीज़ हैं हमारे इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज पुटिंग प्रेशर ऑन फॉरेस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा ह्यूमंस बढ़ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर ह्यूमंस बढ़ते रहेंगे और प्लांट्स उतने ही हैं जितने पहले थे, तो डेफिनेटली बहुत सारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होंगी और वो थोड़े से प्लांट्स कब तक उन ऑक्सीजन को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से जो प्लांट्स हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्लांट्स जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल्स ले रहे हैं,
ठीक है. So the forests are being cleared for the construction of settlement, roads, factories, etc. The trees are cut irrationally. Excessive felling of trees leads to deforestation that causes soil erosion, landslides and floods. ठीक है, डिफोरेस्टेशन होता है पेड़ों को काटना. ठीक है, यानी कि हम रोड्स, फैक्ट्रीज और अपने अलग अलग ह्यूमन पर्पसेस की वजह से ट्रीज़ को काट रहे हैं, जो कि गलत नहीं है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए जो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं. और अब बहुत कम ट्रीज़ हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा हम मात्राओं में ट्रीज़ अंधाधुंध काटे जा रहे हैं विदाउट मेकिंग प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, जिसकी वजह से बहुत सारे सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड्स और फ्लड जैसे कॉजेज हम देखने को मिलते हैं. और आगे ये और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं. फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री. This program was started in which children are encouraged to plant trees and even care for them. Apart from this, the government is also involving local and tribal people in the conservation of forest. Steps are being taken to develop green belts in urban areas. यानी कि बहुत सारे steps लिए गए हैं ताकि urban areas में green belts यहाँ पे बोला गया है ताकि green trees इकट्ठा हो चुके हैं, उसको green belts नाम दिया गया है. ठीक है, यानी कि बहुत सारे steps लिए गए हैं. आपको भी, आप एज अ स्टूडेंट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम उन्हें बिना स्ट्रैटेजी, बिना प्लानिंग के काटेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को बहुत हार्म हो सकता है. और हो सकता है इसी जनरेशन में हमें बहुत सारे कॉजेज़ देखने को मिले जो कि काफ़ी मिल भी रहे हैं. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट फॉरेस्ट. लेट्स टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ, जो कि फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है. आप सभी जानते हैं जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं. दे कैन नॉट लिव इन, दे आर नॉट पैट एनिमल्स, सो दैट दे कैन नॉट लिव विथ ह्यूमंस. So let's study. As said earlier, forests are natural home for animals. Forest natural home in wild animals ka. As we have seen that there are great variety of vegetation in India. These forests are the home to a large variety of wild animals and birds. The most important animal found in these forests in our country include elephants, tigers, leopards, rhinoceros and the lions. ठीक है, ये important animals हैं जो कि forest पर dependent है. वो human के साथ as a pet नहीं रह सकते हैं. Okay, the Gir forest in Gujarat is called home of Asiatic lions. ठीक है, यानी कि गुजरात के इस एरिया को होम बोला जाता है एशियाटिक लायंस का. यानी कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एशियाटिक लायंस मिलते हैं, इसलिए इसको घर ही बोल दिया. ओके, डीप एंड एंटेलम्स आर कॉमन इन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया. यानी कि डीप और एंटेलम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स पर. रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. है हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर. देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स. हमारी इंडिया में बहुत सारी काइंड ऑफ वेजिटेशन है. ठीक है, मैंने शायद ऊपर बताया नहीं आपको, इंडिया में बहुत काइंड की वेजिटेशन है क्योंकि इंडिया का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा यूनिक है. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़. ओके, पिकॉक इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल अमंग द इंडियन बर्ड्स. हम सभी जानते हैं कि सभी बर्ड्स में पिकॉक सबसे ज़्यादा सुंदर माना जाता है. इट्स वेरी कलरफुल एंड इट्स लीव्स आर इवन सो ब्यूटीफुल. ओके, इट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया और इसीलिए हमारे इंडिया की नेशनल बर्ड इज ऑल्सो अ पिकॉक. द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर द होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स विद कलरफुल प्लमगेज. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे एनिमल्स के यहाँ पे फोटोज दिखाए गए हैं जो कि वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं. यानी कि इनके लिए फॉरेस्ट एक घर है. अगर आप खुद ही सोचिए, आप घर के बिना कैसे रह सकते हैं. तो अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे, ये लोग इंसानों पर हमला करेंगे. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फॉरेस्ट आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. Many other wildlife sanctuaries, bioreserves and national parks are located in our country to protect conservation the wildlife. यानी कि गवर्नमेंट ने भी इस पर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं ताकि हम इन एनिमल्स को, इन वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकें. ठीक है, यानी कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, conservation of wildlife. All the plants and animals in a given area are so closely interlinked and interdependent that they cannot survive without each other. Today, no one is allowed to hunt animals and birds. आपको पता है आजकल किसी को भी जानवरों को मारना अलाउ नहीं है. ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले के ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा एनिमल्स को मारते थे और इसी वजह से हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही है. और जू भी आप समझ सकते हो, जू की इंपॉर्टेंस भी ये है ताकि वहाँ पर एनिमल्स की स्पीशीज़ प्रोटेक्ट रह सके, वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो. ठीक है, The World Wildlife Fund of India helps in saving wildlife through the social forestry programs which encourage to plant trees in villages and towns. यानी कि एक वर्ल्ड लाइफ फंड जो है इंडिया का, वो हेल्प करता है वाइल्ड लाइफ को ताकि सारी स्पीशीज़ ख़त्म ना हो इंडिया की. फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो कि आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो आज से कुछ टाइम पहले हुआ करती थी बट अब नहीं होती हैं. क्यों? क्योंकि वो विलुप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है फ्रॉम दिस वर्ल्ड थ्रू एनी रीज़न. ठीक है, किसी भी रीज़न से हो सकता है वो. तो हमारी सारी स्पीशीज़ हमारे पास प्रोटेक्टेड रहे, इसके लिए एक फॉरेस्ट्री प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया था. ठीक है, जो कि पीपल को इंकरेज करता है कि वो प्लांट्स, विलेजेस और टाउन्स को मतलब इस यानी कि
ताकि छोटे से छोटे एरियाज़ में भी हम बता सकें कि प्लांट्स ट्रीज़ को हम और वाइल्ड लाइफ को हम कैसे कंजर्व रख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नेशनल पार्क्स हैं हमारे पास इंडिया में, ठीक है, जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल दच्चीगम एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि जम्मू कश्मीर में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में, घना राजस्थान में, और इस तरह से आप बाकी नेशनल पार्क्स और बर्ड सैंचुरीज को पढ़ सकते हो जो कि हमारे इंडिया में लोकेटेड है। और आई होप आप समझ गए हो ऐसा क्यों है, ताकि हम अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट रख सकें, उनकी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।